नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 360 में। मैं हूं अनीशा गुप्ता। और सितंबर में अच्छी बारिश ने देश में सूखा पड़ने की जो आशंकाएं या कंसर्न थी उसके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाया है। आईएमडी के मुताबिक 20 सितंबर तक देश में बारिश की स्थिति घटकर -7% पर आ गई है, जो कि 2 हफ्ते पहले -11% पर थी। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून सीजन इस बार सामान्य से कम बारिश के साथ खत्म हो सकता है। इसी पर और डिटेल में जानकारी के लिए हमारे साथ हैं आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जनमनी। मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे लेटेस्ट नंबर्स यहाँ पर जानना चाहेंगे कि एज ऑफ नाउ यहाँ पर सितंबर में किस तरह की बारिश रही है और आपको क्या अनुमान है, आईएमडी का क्या अनुमान है कि ये सीजन कैसे खत्म हो सकता है? नहीं, देखिए, जो प्रेडिक्शन आईएमडी का था बिल्कुल इंडिया डायरेक्शन है। हम अगर देखेंगे अगस्त में तो जरूर लोएस्ट रेनफॉल था 123 ईयर्स का। ओके, बट इन द सितंबर वी हैव गॉट 10% जस्ट अबव द नॉर्मल and it can become also excess any time. So that is all India rainfall. And if we see region wise, Northeast India continue to be -39%, very large deficient. But if we come to other parts of India, whether it is northwest, central, or even peninsular India, they are very they have performed well. Central India we have plus 48%, and northwest India if we see almost normal है -2%. I am talking September month rain. And when we come south peninsula, it is also excess plus 22. So with central and south peninsular India having excess, so September have become a very good or excess monsoon, we can tell till today or tomorrow, because 10% it has come. And overall it has improved from -11 to -7. It's very big improvement. And another information we have given today, very important information we have given, that if we see the pattern, the wind pattern and other things, slowly we are telling that by end of next say week, say today is 21st, so by 25, 26, some features are developing towards the withdrawal of the monsoon. But we have not officially told, we have just mentioned that the circulation pattern, wind mainly, and the moisture, they show that may the circulation pattern develop, which will lead to withdrawal from extreme northwest India. So that is the latest. And at the same time, we have low pressure also today over Jharkhand. So this will move towards East UP and then Bihar. So eastern and northeast India will get rainfall next 5 days. So by that time, we can expect that some improvement will be there for Bihar, Jharkhand, and also over East UP also. So that is the update from IMD. Yeah. मिस्टर जनमनी, आपने कहा साउथ में 22% एक्सेस बारिश हो सकती है, लेकिन इसमें केरला, कर्नाटका जैसी जो स्टेट्स हैं उनका क्या व्यू है? Yeah, I think the Karnataka, some parts has improved, particularly north interior Karnataka. But as we were discussing, the improvement mainly has been seen large part of Maharashtra. Many districts has become normal. Also similar for the Madhya Pradesh, particularly West Madhya Pradesh, and also for Gujarat. So because we have almost 3 to 4 low pressure system moving across the central India, so that has given a copious rainfall. So we have Gujarat, many districts recovered, Maharashtra, many districts recovered. So that way Odisha and others, they have been benefited. But as you asked about Kerala, particularly the Kerala part remains, but Karnataka part has improved, particularly north interior Karnataka. But South Karnataka remain, deficient. So that has come up. But as in the northern part, if you see East Uttar Pradesh, Jharkhand, Bihar, and GWB, they are slowly improving. So, but larger perspective, you are getting -7. So I don't think what we were, speculating or many media were highlighting El Nino was there. So, but that was mainly restricted to August only. And when you got a July excess rainfall, so I think that played a very crucial role and has given a good thrust to the agriculture. Yeah. And September at the same time, you are getting also 10%. So I hope it will improve further. So more than 10% means it may improve, on the positive side, higher side may be excess also. It will take greater than 10% as the excess for all India rainfall. Yeah. Fair point. So Mr. जनमनी, अगर हम 25th and 26th के बीच में यहाँ पर मानसून विड्रॉल देख रहे हैं, क्या आप उसे एक पॉजिटिव न्यूज के हिसाब से लेंगे एज ऑफ नाउ? Definitely, because if you see what we have written, that the northwest India rainfall, the major spell is almost over. There will be no major spell till say next 5 to 6 days. So that period we are looking actually how the features are developing. So naturally, whenever you get time and when the monsoon features are retreating, so it's our responsibility to see that correctly declare the withdrawal. So
So maybe we don't know in latter part in October some rain thunderstorm because of the western disturbance, but that is a different story. So as we see today, we don't have major system or rain over northwest India. So that way, even west central India rainfall will be substantially reduced. Gujarat, North Maharashtra will reduce also next 5 to 7 days. Mainly 5 to 7 days, the rainfall will be over northeast India and adjoining east central India, covering northeastern states, Jharkhand, Bengal, Odisha, and East MP, Chhattisgarh, Vidarbha, this part only. Okay. I don't see also major rain in the peninsular India, particularly the Karnataka and Maharashtra. Yeah. या मिस्टर जनमनी, जब हम मॉनसून विड्रॉल की बात करते हैं तो यूजुअली राजस्थान से होता है एंड वेस्ट राजस्थान में इस बार बहुत बड़ा डेफिशिएंसी देखने को मिला है। तो विद इन राजस्थान अगर हम नॉर्थ एंड वेस्ट राजस्थान को भी यहाँ पर देखें, कैसे देखते हैं आप डेफिशिएंसीज? Actually, if we see, I don't think we in the September month might have some relatively less rainfall, but overall you don't get because you have already, Rajasthan having very high rainfall in the first half of the season. Yeah. So I don't think it has affected overall the Rajasthan and other parts of India. Only, as I told, in the September month might be less rain, but overall rainfall are normal and excess for northwest India. Only thing remain is the whatever that eastern Uttar Pradesh, Jharkhand and Bengal, and also part of Karnataka and Kerala. Otherwise, other parts have been completely become normal or excess because you have overall -7 now. ऑल्सो मिस्टर जनमनी, आपने कहा कि एल निनो है लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने बारिश में आते हुए नहीं देखा। अगस्त को अगर हम छोड़ें तो जुलाई बहुत बेहतरीन था, सितंबर में भी अच्छी खासी हम ऑलमोस्ट एक्सेस रेनफॉल यहाँ पर देख रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ एल निनो की क्या स्थिति है और कैसे इसे आगे जाकर देखना चाहिए? Actually, El Nino, it has severely affected the August month rainfall, and if you see in the long-term time series, the impact has been like that. Only it hit some months, but if you leave like 2002 or 9 or 4, which were severe deficient or drought years, this 2023 has not been comparable to those years. Seeing the El Nino signature in that in that photograph, so I don't think it has impacted much like earlier deficient El Nino related years. So it's good to see that you get -7, come out with a -7 digit, which has been very good. And especially also we have seen how the the area like Maharashtra and Gujarat, there have been make up, and also we have Madhya Pradesh getting good rain. So that's what, and Rajasthan, many area which are perennial to low rainfall during El Nino years, they have come up well at the end of the last third week of September. फेयर पॉइंट मिस्टर जनमनी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो 2-3 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आईएमडी के इंटरव्यू से आती हुई कि -11 का जो मॉनसून था वो -7% पे फिलहाल है, आगे जाके इसमें और भी इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है, और सितंबर अब तक यहाँ पर 10% एक्सेस रेनफॉल देखने को मिली है जो ऑफकोर्स काफी सपोर्टिव है। दूसरी बड़ी बात यह कि 25-26 सितंबर को यहाँ पर मॉनसून विड्रॉल होता हुआ नजर आएगा, यानी कि राजस्थान से यहाँ पर बारिश निकलती हुई नजर आएगी। राजस्थान में कुछ कंसर्न्स यहाँ पर जरूर रही हैं, लेकिन जैसे मिस्टर जनमनी ने बोला कि जो बहुत बड़ा डेफिसिट था वो यहां पर कम होता हुआ जरूर नजर आया है, और क्लियरली बहुत पॉजिटिव हमने यहां पर आता हुआ देखा है सेंट्रल इंडिया के लिए जो 48% एक्सेस है अगर सितंबर के महीने की बात की जाए, और दूसरा यहां पे ऑफ कोर्स नॉर्थ वेस्ट है जो -2 पे है, लेकिन सदर्न इंडिया +22% पे है। तो ओवरऑल अगर यहां पर देखें तो नॉर्थ ईस्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी एरियाज में, ज्योग्राफीज में यहां पर बेहतर बारिश होती हुई नजर आई है। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे साथ जुड़ेंगे अमित खरे और साथ ही साथ नवनीत दमानी जो हमें यहाँ पर स्ट्रैटेजीज बताएंगे कि आपको कमोडिटीज में ट्रेड कैसे करना चाहिए। कमोडिटीज के अमित खरे और मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी हैं। नवनीत, आपसे पहले पूछना चाहेंगे, और बैंक ऑफ इंग्लैंड का अभी जो रिजल्ट आया है और उन्होंने इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर नहीं करी है, कैसे उसे रीड करते हैं, कैसे यूएस फेड की मीटिंग अनाउंसमेंट रीड करते हैं और कमोडिटीज इम्पैक्ट? मनीषा जी, फेड की मीटिंग जो है काफी हद तक डिस्काउंटेड थी और मार्केट का धारणा ये था कि फेड की तरफ से कोई ब्याज दर हाइक नहीं होगी और कमेंट्री जो रहेगी थोड़ी सी हॉकिश रहेगी। बट मैं कहूंगा थोड़ी सी ओवर हॉकिश सुनाई सी लग रही है ये कमेंट्री, और जिसकी वजह से अब एक रिएक्शन देखने मिल रहा है गोल्ड और सिल्वर प्राइस में थोड़ा सा दबाव में। ईसीबी का जो डिसीजन आया है वो भी प्रीटी मच इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन था, और कल जो बैंक ऑफ जापान की तरफ से स्टेटमेंट आएंगे वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा उथल पुथल या थोड़ा सा डिसरप्शन ला सकते हैं, क्योंकि काफी दिनों से उन्होंने 2-3 चिंताएं जताई। अगर उसके आसपास कोई डिसीजन हुआ तो इट विल बी लिटिल मोर वोलेटाइल फॉर द कमोडिटी मार्केट। उसके साथ साथ हम गोल्ड और सिल्वर प्राइस में एक दबाव का माहौल देखने मिल रहा है। मुझे लगता है कि गोल्ड ने अच्छा पुल बैक के बाद में फिर से एक प्रेशर देखने मिल रहा है, तो सेल करके चलना चाहिए। 59,100 के आसपास मिले तो सेल किया जाए, 59,400 का आप स्टॉप लगाइए, एंड
58,500 58,200 तक के टारगेट आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रहेगा क्रूड ऑयल प्राइस में, जहां पे कंटिन्यूड सक्सेसिव रैली के बाद में हमने प्रॉफिट टेकिंग का माहौल क्रूड में आते हुए देखा है। मुझे लगता है वापस $90 के नीचे WTI ट्रेड होगा और करीब करीब $2 का करेक्शन यानी 7200 7150 तक के भी लेवल आपको डोमेस्टिक लेवल में देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी क्रूड में अपनानी चाहिए। ऑलराइट, बेच के काम करने की सलाह है यहाँ पर कच्चे तेल और सोने दोनों में ही, और हमने एक दबाव यहाँ पर आता हुआ देखा भी है। साथ ही नवनीत, यहाँ पर मेटल्स में क्या करने की राय है, क्योंकि एक प्रेशर तो यहाँ पर भी है। कल एक सस्टेन रनअप हम मेटल्स में लास्ट कुछ दिनों में देखने मिल रहा था, और आज डॉलर इंडेक्स ने थोड़ा सा जो रैली है या मोमेंटम है उसको कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा दिया है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अगर कोई रीजनेबल करेक्शन जो कि हम आज देख रहे हैं या मे भी एक आध दिन और देखने मिले, वो अगर मिले तो डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी अराइज होती है। एल्यूमिनियम और जिंक पर्टिकुलरली दो ऐसी कमोडिटी है जहां पे डेफिनेटली आपको नीचे पे डिप पे बाइंग करनी चाहिए। कॉपर में हमने इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा जंप इन इन्वेंट्री देखी है ऑन द एलएमई। लास्ट कुछ करीब करीब 3 हफ्तों से करीब 80% जंप इन इन्वेंट्री देखा, जिसका दबाव प्राइसेस पे देखने मिल रहे हैं। और साथ ही साथ इक्विटी मार्केट में करेक्शन और डॉलर इंडेक्स की रैली, ये दोनों ही चीजें नेगेटिव जैसे एक्ट कर रही है। ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है, बट अमंग द थ्री मेटल कॉपर और जिंक में थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम ज्यादा अच्छा है। एब्सोल्युटली 1.5% की गिरावट के साथ कॉपर यहाँ पर काम कर रहा है, और इसी तरह की मूव्स हमने बाकी मेटल्स में भी आते हुए देखी हैं। अमित, आपसे एग्री पे जानना चाहेंगे, और जिस तरह से बारिश में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, और जैसे IMD भी कह रहा है कि सितंबर का महीना काफी बेहतरीन है। आई मीन सभी क्रॉप्स के लिए अगस्त बुरा था, सितंबर शायद बहुत डिलेड मॉनसून था, लेकिन आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ है? हाँ, गुड इवनिंग मनीषा जी। मेरे को लगता है सितंबर में जो अभी लेट जो बारिश हुई है वो काफी अच्छी रही है, और जो कमी बारिश में नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं कोटा इस बारिश ने पूरा किया हुआ है। हालांकि फसल में जो है, स्पेशली ग्वार की अगर मैं बात करूं तो ग्वार की फसल को इतना ज्यादा फायदा नहीं है। मेरे को लगता है 10% के आसपास जो है फसल को फायदा हो सकता है, लेकिन मूंगफली की फसल को जरूर एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर ट्रेडिंग लेवल्स की मैं बात करूं तो 5800 का ग्वार सीड अक्टूबर वायदा जो है काफी अट्रैक्टिव मेरे को प्राइस लगते हैं। यहाँ से ट्रेडर्स को एक बाय की अपॉर्चुनिटी लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है प्राइसेस जो है वापस फिर से 6000 के आसपास तक 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूं तो 5700 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए। दूसरा ट्रेड मेरे को लगता है टीएमसी में काफी अच्छा करेक्शन जो है आज देखने को मिला है, और यहाँ से वापस फिर से एक पुल बैक रैली मेरे को लगता है चार्ट के हिसाब से देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफी अच्छे सपोर्ट लास्ट टाइम भी इसी के आसपास 14000 के आसपास से एक बाउंस देखने को मिला था। तो 14200 के आसपास अक्टूबर वाला टीएमसी में ट्रेडर्स को एक खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। मेरे को लगता है टीएमसी में वापस फिर से 15000 के भाव 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 13700 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। थर्ड ट्रेड जो मेरा होगा एग्री का, वो जीरा वायदा का रहेगा 59,500 59,600 अक्टूबर वायदा जीरा अगर स्क्रीन पर मिलता है तो ट्रेडर्स को इसमें खरीदारी का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 61,500 रुपए का इसका टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो 58,700 रुपए का जीरे का स्टॉप लॉस है। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी एग्री। और सारी की सारी खरीदारी की तरफ है यहाँ पर। अगर आप कैस्टर और कॉटन जैसी कमोडिटीज भी देखें हमें, तो यहाँ पर क्या व्यू है? कैस्टर मनसा जी काफी टाइम से एक रेंज में अभी 1 से 2 वीक से कारोबार कर रहा है। मेरे को लगता है 6200 रुपए के नीचे जब तक है इसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। प्राइसेस जो है 6000 के आसपास तक वापस फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो 6200 के आसपास अगर प्राइस मिलते हैं तो ट्रेडर्स को 6250 के स्टॉप लॉस के साथ एक सेल का ट्रेड लेके चलना चाहिए। 6000 के आसपास अगर आता है तो वहां पे एक मुनाफा वसूली मेरे को लगता है ट्रेडर्स को करना चाहिए। वहीं पे कॉटन के भी प्राइसेस की अगर मैं बात करूं तो एमसीएक्स का जो कॉटन कैंडी है वो लगभग अभी 58,000 से लेके 61,000 की रेंज में कारोबार कर रहा है। तो मेरे को लगता है 58,000 इसका एक अच्छा बेस जो है यहाँ पे बन चुका है। 58,000 के आसपास प्राइसेस अगर वापस फिर से मिलते हैं तो वहां पे ट्रेडर्स को जरूर खरीदारी करके चलना चाहिए। प्राइसेस वापस फिर से 61,000 के आसपास तक टेस्ट कर सकते हैं। तो 61 से 58 की रेंज मेरे को अभी कॉटन में अभी शॉर्ट टर्म में लगती है। जी मैम। नवनीत, डॉलर इंडेक्स की क्या रेंजेस पकड़ेंगे अब आप यहाँ पर, क्योंकि ग्रेजुअल ही सही लेकिन लगातार तेजी है? मुझे लग रहा है कि ये करीब 50 बेसिस पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। 106 50 107 के आसपास भी जा सकते हैं, बट यहाँ से इंक्रीमेंटली बहुत बड़ी तेजी मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है वी आर एट द टॉप एंड ऑफ द रेंज, और यहाँ से बाकी सारे देशों के भी आंकड़े जो है थोड़े से बेटर आने लगेंगे, और डॉलर इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस आएगा। यूएस ऑल्सो डजंट वांट कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डॉलर इंडेक्स में बनती रहे, और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में अगर फिर से बाउंस देखने मिला तो ये डेफिनेटली एक नेगेटिव कैटलिस्ट जैसे ऐड करेगा। तो करीब 100 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट बढ़ने के लिए, और नीचे अगर आएगा तो करीब 250-300 बेसिस पॉइंट का करेक्शन आने वाले दिनों में।
ऑलराइट, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नीचे की तरफ है, लेकिन जहां तक ओवरऑल सेगमेंट की बात है, नॉन एग्री में बिकवाली करके काम करें, एग्रीकल्चर में अभी भी खरीदारी के मौके निचले स्तरों पर ढूंढे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अमित, नवनीत, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।